बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और भरपूर अपनी स्टडी पे तवज्जो दे रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to discuss the previous lecture. In previous lecture we have solved various exercises related to the cash flow statement and further basically concerned with the operating activities, investing activities and financing activities. Inshallah, today we will discuss the various more topics that are related to the expanded analysis. First of all, we will discuss the perceptions of financial ratios, then financial ratios in annual reports, conservatism and quality of earnings. Then we will discuss the forecasting financial failure, and then we will discuss the univariate model and multivariate model. Then we will discuss the management use of analysis and use of LIFO reserves. Then we will discuss the management of earnings, then valuation. Then we will discuss the what analysts use. Then we will solve the practical exercises about these topics. Now we will discuss all topics one by one. First of all, perception of financial ratios. What are the perception of financial ratios? Commercial loan departments. You know कि एक कमर्शियल लोन डिपार्टमेंट होता है हर बैंक में, तो वो डील करता है बेसिकली आपकी इंडस्ट्री को, और वो लोन की अप्रूवल या डिसअप्रूवल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इसमें फाइनेंशियल रेशियोज कैन बी यूज्ड बाय ए कमर्शियल लोन ऑफिसर and commercial loan department to aid the loan officer in deciding whether to grant a commercial loan and in maintaining control of a loan once it is granted. के basically ये ratios जो हैं ये कमर्शियल लोन ऑफिसर को सपोर्ट करेंगी कि वो लोन को अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा. तो उसके बाद जब लोन एक दफ़ा ग्रांट कर दिया जाएगा तो उसकी बेसिकली जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमर्शियल डिपार्टमेंट की. देन दैट इज रिलेटेड टू दी CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. वी विल डिस्कस all basically one by one. You can see commercial loan departments are concerned with the significant rates of the different and various ratios. Like you can see commercial department is more concerned with these ratios. If you can see in the slides, like debt to equity ratio, significance rating is 8.71, यानी कि इतनी रेशो हो तो वो सेटिस्फैक्ट्री होगी फॉर दी कमर्शियल लोन डिपार्टमेंट. देन करंट रेशो इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू 8.25, और साथ साथ ये भी मेंशन है कि ये प्राइमरी मेजर्स ये लिक्विडिटी रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं या डेट रेशियोज हैं, ये भी आप देख सकते हैं. तो करंट रेशियो इज रिलेटेड टू दी लिक्विडिटी रेशियो. देन कैश फ्लो divided by current maturities of long-term debts and notes payable. Already we have discussed about this ratio. That is basically related to the debt ratio. Next is fixed coverage charge. That is 7.58 ratio. That is significant rating, and that is also part of the debt ratio. तो आज हम बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें ये भी क्लैरिटी हो रही है कि ये रेशियोज डेट रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, या ये बेसिकली लिक्विडिटी रेशियोज हैं. तो नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज. दैट इज रिलेटेड टू दी प्रॉफिटेबिलिटी. यू कैन सी अमाउंट इज गिवन 7.56. रेशियो इज बेसिकली सिग्निफिकेंट फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द कमर्शियल लोन डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज टाइम इंटरेस्ट अर्न. That is related to the debt ratios. Next is net profit
before taxes, that is related to the profitability ratios. Then degree of financial leverage. If we will discuss the degree of financial leverage, that will be related to the debt ratios. Then inventory turnover in days is related to the liquidity of the company assets. Then accounts receivable turnover is related to the liquidity of the business. These ratios basically are related to the commercial loan department और वो लाजमी इन रेशियोज को चेक करेगा लोन को अप्रूव करने से पहले, और ये रेटिंग भी गिवन है. अगर इन रेटिंग के मुताबिक कंपनी की रेशियोज मौजूद है तो कमर्शियल डिपार्टमेंट कोई भी हेजिटेशन फील किए बगैर लोन अप्रूव कर देगा. नेक्स्ट, बेसिकली दीज रेशियोज आर रिलेटेड टू दी कॉर्पोरेट कंट्रोलर्स. वो कमर्शियल लोन डिपार्टमेंट के रेलेवेंट थी, ये कॉर्पोरेट कंट्रोलर्स के रेलेवेंट है. अर्निंग्स पर शेयर परसेंटेजेस आर गिवन 80.60 अर्निंग पर शेयर, ये बेसिकली एक बेंचमार्क गिवन है और ये भी रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं. डेट टू इक्विटी रेशियोज आर रिलेटेड टू दी डेट रेशियो. रिटर्न ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू दी profitability ratio because we need to calculate the return on equity net income divided by total shareholders equity. Current ratio is related to the liquidity ratios. Next is net profit margin after tax, that is related to the profitability ratios. Dividend payout ratio is related to the other ratios. It is not part of the debt, it is not part of the profitability, and liquidity ratio, that is related to the other ratios. Return on total invested capital, that is related to the profitability ratios. And net profit margin before tax is related to the profitability ratios. Next is accounts receivable turnover in days, that is related to the liquidity of the business, and return on assets, that is related to the profitability. So dear students, now we will discuss the various ratios that are related to the certified public accountants. कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट मेन किन रेशियोज पे फोकस करते हैं, किन रेशियोज पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं. वो रेशियोज हैं जी, नंबर 1 करंट रेशियो, दैट इज रिलेटेड टू दी लिक्विडिटी रेशियोज. देन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, आल्सो रिलेटेड टू दी लिक्विडिटी रेशियोज. Then after tax return on equity, that is related to the profitability ratios. Next is debt to equity ratio, also related to the debt ratios. Then quick ratio is related to the liquidity ratio of the business. Net profit margin, net profit before tax, net profit before tax, return on assets, and return on total invested capital, these are related to the profitability ratios. And inventory turnover in days is related to the liquidity of the assets. You can see certified public accountants are more concerned with the basically profitability ratios. Maximum you can see in basic all ratios 5 times profitability ratios basically is related to the certified public accountants. Now dear students, we can discuss about the chartered financial analyst. Chartered financial analysts are basically more concerned with the various ratios like return on equity after tax, that is related to the profitability ratios. Then price earning ratio is related to the other ratios. It is not part of the liquidity, not part of the debt, not part of the profitability, that is related to the other ratios. Then earning per share is related to the profitability, and net profit margin after tax, return on equity and net profit margin are related to the profitability ratios, and net profit margin before tax also related to the profitability ratios. Quick ratio is related to the liquidity ratio, fixed charge coverage is related to the debt ratio, and return on asset basically is part of the profitability ratios, and time interest earned is related to the debt ratio. You can see chartered financial analysts are more concerned with the
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो रेशियोज वो कैलकुलेट करता है या जिस पे फोकस करता है, दीज आर दी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नेक्स्ट इज you can see comparison is given, or green color shows that basically debt, next is liquidity, next is profitability and other। तो आप देख सकते हैं एक सिग्निफिकेंट रैंकिंग दी हुई है, 1 2 3 4 5 ये रैंकिंग में है, और लोन डिपार्टमेंट्स का कंसर्न दिया हुआ है, कारपोरेट कंट्रोलर्स, CPAs और CFAs। CPAs सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। आपके सामने है कि जो बेसिकली डेट रेशियोज हैं इन केस ऑफ लोन डिपार्टमेंट्स, वो आप 3 रेशियोज को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट है डेट टू इक्विटी, कैश फ्लो, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड फिक्स्ड चार्ज कवरेज। बेसिकली 3 रेशियोज आर रिलेटेड टू दी डेट रेशियोज इन केस ऑफ लोन डिपार्टमेंट। And basically liquidity ratio is only one ratio is required for in case of loan department, that is current ratio, and profitability ratio only net profit margin after taxes is related to the loan department. And other basically there is no ratio in case of loan department, other ratio. Then you can see corporate controllers, earning per share, debt equity, ये सारी रेशियोज दी हुई है, आप इसका एनालिसिस दे सकते हैं। तो बड़ा इजी है, हर एक बेसिकली रेशियोज का कलर डिफरेंट है, तो यू कैन बेसिकली एनालाइज वेरी इजीली। तो डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रेशियोज इन रिपोर्ट्स। बेसिकली दिस slide is related to the research. One researcher basically has taken the 500 companies और डिफरेंट 100 कंपनीज, आप एक इंडस्ट्री के लिए 100, दूसरे की 100, तीसरी इंडस्ट्री की 100, चौथी की और पांचवी इंडस्ट्री की 100, इस तरह 100 करके 500 कंपनीज को एज ए सैंपल सेलेक्ट किया। उसमें से फर्दर उन्होंने फर्स्ट 20 इंडस्ट्रीज को पिक किया जो कि 100 इंडस्ट्रीज बनती है। नंबर ऑफ इंक्लूडेड जो नजर आपको आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू दी बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज टेकन एज ए सैंपल साइज फॉर दिस रिसर्च। तो बाकी अर्निंग पर शेयर और ये जो नंबर इंक्लूडेड है ये शो कर रहा है कि ये रेशो हमने जब 100 इंडस्ट्रीज को एनालाइज किया, डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद रिजल्ट निकाले, तो ये रेशियोज इतनी दफा रिपीटेड हुई। तो अर्निंग पर शेयर के केस में 100 की 100 इंडस्ट्रीज ने अर्निंग पर शेयर रेशो को कैलकुलेट किया हुआ था। इन केस ऑफ डिविडेंड पर शेयर रेशो 98 टाइम्स बेसिकली डिविडेंड per share ratio was calculated basically during the research, that is finding. और in case of book value per share 84 times ये रेशियो रिपीट हुई 100 कंपनीज में से, और वर्किंग कैपिटल 81 टाइम्स रिपीट हुई, और रिटर्न ऑन इक्विटी 62 टाइम्स रिपीट हुई। यानी कि जब 100 कंपनीज का डेटा लिया गया तो आपने देखा कि 62 कंपनीज ने रिटर्न ऑन इक्विटी को रिपीट किया, यानी कि बाकी जो 38 थी उन्होंने इसको एनालाइज नहीं किया। प्रॉफिट मार्जिन 58 टाइम्स रिपीट हुई और इफेक्टिव टैक्स रेट 50 टाइम। तो यू कैन सी कि सबसे ज्यादा जो रिपीटेड रेशियो है दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, और दूसरे नंबर पे डिविडेंड पर शेयर। और बाकी जो आपके पास प्रेसिडेंट लेटर, मैनेजमेंट डिसीजन, डिस्कशन, मैनेजमेंट हाईलाइट्स, फाइनेंशियल रिव्यू और फाइनेंशियल समरी गिवन है। बेसिकली दीज आर द लोकेशंस कि ये वाली मैनेजमेंट डिसीजंस अर्निंग पर शेयर के बारे में 5 नंबर पेज पे है और डिविडेंड पर शेयर 10 नंबर पेज पे। ये लोकेशन बेसिकली गिवन है कि कहाँ का ये डेटा गिवन है। तो ये भी बेसिकली जस्ट एनालिसिस के लिए था और बेस्ड ऑन रिसर्च है। रेशियोज रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंक्लूडेड कंपटीशन ऑफ रेशियोज नॉट कंसिस्टेंट, नो रेगुलेटरी एजेंसी currently accepts responsibility for determining content or format for presentation of ratios in annual reports। यानी कि कोई ऐसी कंट्रोलिंग एजेंसी नहीं है जो कि रेशियोज को कंट्रोल कर सके कि एनुअल रिपोर्ट में कहाँ पे इनको प्लेस होना चाहिए। तो हर कंपनी अपने हिसाब से नॉर्मली इसको प्लेस करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द कंजर्वेटिज्म एंड क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स।
Conservatism, already we have discussed about conservatism in previous lectures, achieved through the slowest reporting of net income. क्या मतलब कि ये आपकी जो रिपोर्टिंग है ये बड़ी स्लोली रिपोर्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से यील्ड क्वालिटी जो है ना वो हायर है, यानी कि जो हमारी आउटकम है उसकी क्वालिटी जो है वो हायर लेवल पे जाती है, क्योंकि हम बड़ा स्लोली इसको प्रोसीजर करते हैं और मिस्टेक के चांसेस काफ़ी कम होते हैं. Inventory in periods of inflation, LIFO reports highest cost of goods sold and lowest assets inventory. What shows that? Already we have discussed about the LIFO कि जब हम LIFO यूज़ करते हैं उसका पर्पज़ यही होता है कि हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो मैक्सिमम शो हो और प्रॉफिट कम हो. जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैक्सिमम शो होगी तो हमारी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम जब इन्वेंट्री इशू करते हैं तो लेटेस्ट प्राइस के साथ हम इशू करते हैं, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो दैट्स वाई बेसिकली इट विल बी द रीज़न ऑफ इंक्रीज इन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिक्रीज इन द इन्वेंट्री. फिक्स्ड एसेट्स, एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड्स. फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अगर हम उसको जल्दी डेप्रिसिएट करना चाहें तो वी विल यूज द एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, जिसे 200% और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं. उस सूरत में भी आपके एसेट्स की वैल्यू यानी कि एसेट की वैल्यू कम शो होगी और आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा. एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो आपकी नेट इनकम कम होगी और यू विल हैव टू पे द टैक्स मिनिमम. तो शॉर्ट लाइफ एस्टिमेट्स आप इसके ऊपर करते हैं. कंजर्वेटिज्म एंड क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की कंटिन्यूशन में इंटेंजिबल एसेट्स, शॉर्ट लाइफ एस्टिमेट्स, यानी कि आप इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स एटसेट्रा, फार्मूलाज वगैरह हैं, उसकी आप लाइफ की एस्टिमेशन शॉर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंसिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज इनकर्ड. और पेंशन के केस में आप एज्यूम करते हैं कि जो आपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन देंगे उसको डिस्काउंटेड रेट पे, वो ऑलरेडी आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा डिस्काउंटेड रेट क्या है, तो हम फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंटेड रेट पे कम कर लेते हैं तो वैल्यू हमारी कम शो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो जाता है और रेट ऑफ कंपैरिजन इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग फाइनेंशियल फेलियर. फाइनेंशियल फेलियर समटाइम कंपनी के फाइनेंशियल फेलियर्स होते हैं डिफाइंड एज लिक्विडेशन, determinant of payment on debts and passing on preferred dividends. and financial बेसिकली ये रीजंस हैं फाइनेंशियल फेलियर की कि समटाइम्स आपका लिक्विडेशन प्रॉब्लम आ जाता है, समटाइम्स आप पेमेंट जो डेफर करते रहते हैं डेट्स के ऊपर, तो यकदम अगर आपको पेमेंट करनी पड़ती है वो भी आपके ऊपर एक बर्डन होता है. और उसके अलावा जब आप प्रेफर्ड डिविडेंड्स को ज़्यादा पे करना शुरू कर देते हैं. फाइनेंशियल फेलियर क्राइटेरिया, देयर इज नो स्टैंडर्ड आज अवेलेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल फेलियर. Next is isolate ratios are basically concerned with the financial failures that may forecast failures. Construct model first of all used by management as a preventive measures, used by investors in portfolio management, used by creditors in lending decisions, used by auditors to assess going concern status, and recognized models univariate and multivariate. We will discuss basically these two models in detail. Univariate basically model is proposed by the Bever. सिंगल बेसिकली वेरिएबल इस मॉडल में इस्तेमाल किया जाएगा, एक वेरिएबल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इस मॉडल की सबसे पहली असम्पशन ये है कि वन वेरिएबल विल बी इंक्लूडेड इन यूनिवेरिएट मॉडल. एंड जो आइडेंटिफाइड रेशियोज बेसिकली की जाएंगी बाय दी यूनिवेरिएट मॉडल, यानी यूनिवेरिएट मॉडल जिन रेशियोज को फोकस करता है, दीज आर द रेशियोज: कैश फ्लो टू डेट रेशियो एंड नेट इनकम टू टोटल एसेट ratio means return on asset ratio, and total debt to total asset ratio. These three are ratios are related to the univariate model. Okay, when we will discuss the univariate model, we need to calculate these three ratios. Already I have discussed with you. Next, basically other observed relationships हैं इस univariate model के अंदर, that is failed firms have less cash, कि उसके फेल होने की रीज़न ये है कि उसकी कंपनी के पास लेस कैश हो सकता है. नेक्स्ट, आपके रिसीवेबल्स
हायर हो सकते हैं। हायर रिसीवेबल कब होंगे कि जब आपकी कलेक्शन स्लो होगी, तो कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पे इन्वेंट्री बेची होगी, तो रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो जाएंगे। फेयर फर्म हैज़ लेस इन्वेंट्री, ये भी रीज़न हो सकती है कि आपके पास इन्वेंट्री कम है, तो आप इन्वेंट्री नहीं होगी तो आप बेचेंगे कैसे। तो दीज आर दी बेसिकली पार्ट ऑफ दी फेलियर्स। नाउ वी विल डिस्कस दी मल्टीवेरिएट model that is basically proposed by the Altman, okay, and this model is related to the multiple regression model with 5 ratios. Basically this model is related to the 5 ratios, and you can see we need to calculate the z-score, and values of all ratios are given. x1 is 0.012, x2 0.014, x3 0.033, x4 0.006, x5 0.010. Basically these values are basically constant, we cannot change in these values. तो ये माइंड में रखना है कि ये वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी, आपको याद रखनी पड़ेंगी. What shows that x1 working capital you know very well, divided by total assets. Working capital current assets minus current liabilities. तो जो result आएगा that is called working capital divided by total assets. When we will follow the basically multivariate model, so we need to calculate these ratios accordingly. X2 basically retained earnings divided by total assets. You know very well what are the retained earnings. X3 basically is related to the earning before interest and taxes divided by total assets, and X4 is related to the market value of equity divided by book value of total debt, and X5 is related to the sales divided by total assets. You know, out of 5, 4 is divided by the total assets, only 1 is divided by the book value of total debt. तो ये बेसिकली इस मॉडल को आपको माइंड में रखना है. Basically I will tell you again कि we need to find out the z-score, but values of variables are given. These are constant values. We are not able to change these values because we need to follow the Altman model. The lower the z-score, the more likely is failure. यानी जितना z-score कम होगा, इसने एक benchmark भी दिया हुआ है, अगर मैं उस benchmark से कम होगा तो that will show the basically company financial failure. So dear students, what is the function of X1? Measure the net liquid assets of the firm relative to the total capitalization. X2 variable basically measures the cumulative profitability over time. X3 variable measures the productivity of the firm assets, and X4 measures the how much the firm assets can decline in value before the liabilities exceed the assets and the firm becomes insolvent. Equity is measured by the combined market value of all shares of stock, preferred and common, while debt includes both current and long-term debts. X5 basically variable measures the sales generating ability of the firm assets, के फर्म के सेल एसेट के क्या एबिलिटी है कि वो सेल को जनरेट कर सके. तो बेसिकली ये मॉडल की मजीद डिटेल थी. वी विल बेसिकली सॉल्व वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद रिलेटेड टू दिस मॉडल. फोरकास्टिंग बेसिकली फाइनेंशियल फेलियर, मैनी एकेडमिक स्टडीज एग्जिस्ट. क्या मतलब, ये बेसिकली यहाँ पे रिसर्च की बात कर रहे हैं. बहुत सारी रिसर्च फाइनेंशियल फेलियर्स के ऊपर की गई है, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमारा टॉपिक जो है वो रिसर्च नहीं है. नो कंक्लूसिव मॉडल हैज़ बीन बेसिकली आइडेंटिफाइड फॉर द फाइनेंशियल फेलियर. यूज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. Analytical review procedures. Auditor isolates significant fluctuations, unusual items performed in various stages of the audit. First of all planning है, field work है और review है. Management use of analysts
relative liquidity, debt and profitability, financial ratios and common size analysis. Basically मैंने भी यूज ऑफ एनालिसिस से मुराद ये है कि सबसे पहले वो फाइनेंशियल रेशियो फाइंड आउट करेगी, देन कॉमन साइज एनालिसिस. ऑलरेडी हम कॉमन साइज एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस कर चुके हैं, तो ये उसकी बात हो रही है. इंडिकेटर ऑफ इन्वेस्टर्स परसेप्शन ऑफ द फर्म as part of corporation planning, general and specific objectives and budgeting. Use of LIFO reserves. Already we have discussed about the LIFO reserves. Firm that use LIFO for financial reporting, disclosure LIFO cost of inventory, approximate current assets of that inventory and difference in the LIFO reserve. यानी कि हमने तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है. नंबर वन, कॉस्ट बेसिस हमने LIFO कॉस्ट बेसिस इन्वेंट्री लेनी है. नंबर टू, हमने फाइंड आउट करना है उसकी इन्वेंट्री को कि इन्वेंट्री पे क्या फर्क पड़ा, और हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि रिजर्व से पहले और रिजर्व के बाद क्या डिफरेंस था LIFO की वजह से. तो डियर स्टूडेंट, डिटरमिन एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन LIFO रिजर्व, इन्वेंट्री, डेफर्ड इनकम टैक्सेस. यानी कि LIFO के रिजर्व यूज करने की वजह से हमारी किन चीज़ों पे फर्क पड़ेगा. नंबर वन, इन्वेंट्री पे, डेफर्ड इनकम टैक्सेस पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, नेट इनकम पे, लिक्विडिटी पे, डेट पे और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे. बेसिकली LIFO रिजर्व यूज करने के बाद हमें ये जो 7-8 आइटम्स हैं इसको अफेक्ट करेगा LIFO रिजर्व. तो वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियोज आफ्टर दी बेसिकली LIFO रिजर्व. ग्राफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड पे यूनिट्स दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कभी आपका ग्राफ अपवर्ड शो कर रहा है, कभी डाउनवर्ड फाइनेंशियल बेसिकली फेलियर भी, जो डाउनवर्ड है वो फाइनेंशियल फेलियर की तरफ है, अगेन दोबारा कंपनी अपवर्ड की तरफ जा रही है. तो ये बेसिकली कॉलम ग्राफ्स हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम है, सिंपल है. ये आपका पाई ग्राफ है. यू कैन सी पाई ग्राफ में प्रेजेंटेड इन सेगमेंट्स, यानी कि आपका डेटा जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग जो है वो किन चीज़ों में बेस करेगी. नंबर वन, कैश बेसिस ऑफ अर्निंग्स अकाउंटिंग. नेक्स्ट इज रिकग्नाइज्ड रेवेन्यू व्हेन कैश इज कलेक्टेड, यानी कि कैश जब कलेक्ट होगा हम रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे. अक्रूवल बेसिस इसका मतलब हम कैश को रिकग्नाइज नहीं करेंगे. रिकग्नाइज एक्सपेंसेस व्हेन कैश इज पेड, तो एक्सपेंसेस को हम तब रिकग्नाइज करेंगे कि जब कैश पे हो जाएगा. ये बेसिकली कैश बेसिस अकाउंटिंग में बात कर रहे हैं. डज नॉट यूजली प्रोवाइड रीजनेबल डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ओवर द शॉर्ट रन. और फिर हम डिस्कस करेंगे अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग को. यूजली प्रोवाइड रीजनेबल, यानी कि जब भी रेवेन्यू आपका इनकर्ड होगा तो वी विल रिकग्नाइज इट, और जब भी आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे वी विल रिकग्नाइज इट. और मैचिंग कंसेप्ट भी हम इसमें देखेंगे. एक्सपेंसेस get recognized when incurred. Already I have told you about these things. Next is कि manipulation earnings through, हम earnings को manipulate भी कर सकते हैं through various items like improper use of estimates. हम estimates को improper use करेंगे, properly use ना करें तो हमारी earnings ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं. improper judgment, और judgment भी हम proper ना लें, और इंटेंशनल एरर्स, और जानबूझ के हम कोई गलती कर दें, उससे भी हमारी अर्निंग जो है वो मैनिपुलेट हो सकती है, यानी कि ज़्यादा या कम हो सकती है. मैनिपुलेशन कम या ज़्यादा दोनों में यूज़ होगा. रेवेन्यू रिकग्निशन इज ऑफन दी फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, लाइक प्री मैच्योर रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू. ये आप समझ चुके होंगे. इन्वेंट्री कट ऑफ, कि इन्वेंट्री की कोई आप पॉइंट लिमिट लगा दें. Receivable timings and valuation. Now we will discuss the valuation, a process of estimating the value of a firm or some component of a firm, and approach to valuation, यानी कि कौन से approaches हम valuation के लिए यूज करेंगे. Fundamental analysis, वो हमारे बेसिकली एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आपके रेशियोज एनालिसिस है. एंड डिस्काउंटेड वैल्यूएशन मॉडल्स. डिस्काउंटेड के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ लिया होगा कि आप फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करते हैं डिस्काउंटेड रेट के साथ. दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड वैल्यूज.
तो फंडामेंटल वैल्यूएशन एनालिसिस हमारे पास क्या है? नंबर 1, एक्सेप्टेंस, not well accepted by traditional financial literature preferred by security analysts and fund managers. Utilize basic accounting measures. हमें अकाउंटिंग बेसिक मेजर्स को यूटिलाइज करना होगा फंडामेंटल वैल्यूएशन के लिए. वो क्या है जी? रिपोर्टेड अर्निंग्स, कैश फ्लो एंड बुक वैल्यू. तो हमें ये 3 चीज़ें बेसिकली रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी और जो कि हमारी वैल्यूएशन एनालिसिस, फंडामेंटल वैल्यूएशन एनालिसिस के लिए काफ़ी होंगी. यूज 1 और मोर मल्टीपल्स, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक, प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड प्राइस टू सेल्स. तो मल्टी पीरियड डिस्काउंटेड वैल्यूएशन मॉडल्स. एक्सेप्टेंस, व्हाट डज मीन? स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय फाइनेंशियल लिटरेचर. ये बेसिकली सारी रिसर्च की टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैं जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ. उसकी रीज़न ये है कि इस पे हमें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक, मेजर टॉपिक नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का हिस्सा है. तो थोड़ा बहुत मैंने इसको डिस्कस कर लिया जाए. डिस्काउंटेड अर्निंग मॉडल्स, डिस्काउंटेड एबनॉर्मल अर्निंग्स एंड रेजिडुअल इनकम ऑफ द बिजनेस. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स, free cash flow, dividend discounted model and discounted cash flow. Discounted earning model क्या है? Discounted abnormal earnings, the value of the firm security is the sum of its book value and discounted forecast of abnormal earnings of the business. That is called discounted abnormal earnings. Then we will discuss the residual income. What does mean? Discounted future expected earnings, and earnings are a periodic measure of shareholder wealth valuation. Discounted cash flow model क्या है जी? Free cash flow, इसमें हमने डिस्कस किया था. The projected future stream of cash inflows are discounted to the present. यानी कि फ्यूचर के जो कैश फ्लोज है उनको हम प्रेजेंट में डिस्काउंट कर दें. जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूचर वैल्यू को आप डिस्काउंट कर दें प्रेजेंट वैल्यू में, तो डेफिनेटली वो कम होगी. तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हम क्या करते हैं जी? माइनस इंटरेस्ट, कैश आउटलेज फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड डेट रीपेमेंट्स एंड प्रेफर्ड डिविडेंड्स, दैट विल बी फ्री कैश फ्लो. फ्री कैश फ्लो किन आइटम पे कंटेन करेगी? दीज आर दी आइटम्स. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल कंटिन्यूड है. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसमें द प्रोजेक्टेड फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स आर डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट. डिस्काउंटेड कैश फ्लो, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट एट द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये स्टूडेंट व्हाट एनालिस्ट यूज, ये भी सारा बेसिकली आप देख सकते हैं. ये रिसर्च के रेलेवेंट बातें हैं कि बार्कर यूरोपियन अकाउंटिंग रिव्यू है, उसमें ये बेसिकली पेपर छपे हुए हैं, उसके बारे में डिटेल है. और डी मराकोज हैं, अकाउंटिंग हॉरिजन्स हैं, और ये डिफरेंट जर्नल्स हैं, उनकी बात हो रही है. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट दी एक्सरसाइजेज. प्रैक्टिस करेंगे जो हमने डिस्कशन की. मेन आज का हमारा फोकस जो है वो बेसिकली मल्टीवेरिएट एनालिसिस और डिफरेंट रेशियोज है, वो हम डिस्कस करेंगे. मल्टीवेरिएट्स याद रखना है कि हमने जी स्कोर वहाँ पे कैलकुलेट करना है, और उसके बाद उसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा इज गिवन फॉर 2010 एंड 2009, और बाकी ये इंफॉर्मेशन भी आपको पढ़नी ज़रूरी है. सिलेक्टेड पार्शियल नोट विद 2010 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये ज़रूरी है पढ़ने. डिटेल है बेसिकली, फुट नोट्स है. इन्वेंट्रीज हैव बीन रिड्यूस 10,000 एंड 7,000 एट December 31st 2010. क्या हुआ कि आपकी इन्वेंट्रीज रिड्यूस हो गई हैं 2010 में और 2009 में. अमाउंट इसकी 10,000 और 7,000 गिवन है फ्रॉम अमाउंट्स विच would have been reported under the FIFO method, which approximated current cost had the company valued all of its inventories under the FIFO method. Net income would have been approximately 5,600 in 2010 and 5,601 in 2009. What is the requirement?
Compute the following ratios for 2010 from the financial statements. तो ये रेशियोज कैलकुलेट करनी है, डे सेल्स इन इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो एंड डेट रेशियो. और फिर कंप्यूट दी फॉलोइंग रेशियो फॉर 2010 FIFO डिस्क्लोजर के साथ आपने करनी यही रेशियोज. मेरे साथ रहिएगा, वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द डे सेल्स इन इन्वेंट्री. नाउ वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट रेशियो, डे सेल्स इन इन्वेंट्री. In inventory is equal to ending inventory divided by cost of goods sold divided by 365. So dear students, after formula we need to put the amounts. अगर आप क्वेश्चन में जाएं तो एंडिंग इन्वेंट्री इज गिवन, दैट इज 24,000 divided by cost of goods sold is also given, you can see in the question, that is 295,000 divided by 365. 365 basically represent the days in a year. तो कैलकुलेटर आपके पास है, आप कैलकुलेशन कर लें. 295,000 divided by 365, that will be 24,000 divided by 808.22. इससे आप डिवाइड कर लें 24,000 divided by 808.22, that will be 29.69 days. Today's sale in inventory basically 29.69 days. Very simple formula, already you know about it. Now we will calculate another ratio, that is working capital ratio. Working capital ratio is equal to current assets minus current liabilities current assets is given in your question. You can see total current assets are 41,000 and current liabilities are 25,000. 41,000 minus 25,000. सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर आपके पास है. 41 में से 25,000 माइनस कर दें, that will be is equal to 60,000. तो ये आपका वर्किंग कैपिटल होगा. नेक्स्ट इज करंट रेशियो. सिंपल फार्मूलाज हैं. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स आपके पास हैं जी, कितने हैं, कैन यू टेल मी? 41,000 divided by 25,000. सिंपल कैलकुलेशन है ये भी. डिवाइडेड बाय 25,000, 1.64 ratio 1. You know, minimum our requirement is basically 2 ratio current ratio, but here only 1.64. ये minimum ratio से कम है. We need to improve in the current assets. Number 4, what is the next requirement? Debt ratio. Debt ratio is equal to total liabilities divided by total assets तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन पे जाते हैं, अमाउंट्स देखते हैं. हमारे पास करंट एसेट्स हैं 41,000 और टोटल करंट लायबिलिटीज फिक्स टोटल एसेट्स हमारे पास 85,000. टोटल एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हमारे पास 41,000 है और लॉन्ग टर्म हमारे पास 30,000 है. तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 25,000 प्लस 30,000.
divided by 85,000 total assets, 25,000 plus 30,000 divided by 85,000, 0.64 multiplied by 100, 64.71%. यानी कि it shows that कि आपके करंट एसेट में क्रेडिटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 64.71% है. तो ये माइंड में रखें, ये क्रेडिटर्स का कंट्रीब्यूशन है. नाउ वी कैन कैलकुलेट नेक्स्ट टॉपिक. कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर FIFO using FIFO disclosure, days sales in inventory. B part, first ratio, days sales inventory in an inventory. Formula will be the same, ending inventory divided by cost of goods sold divided by 365. Now we need to basically add or subtract some amount. Question में वापस जाएंगे. तो dear students, other information is given कि due to FIFO आपका reduce हो गया 10,000 basically inventories. तो ये हम add कर देंगे. 24,000 plus 10,000 divided by cost of goods sold 295,000. या मैंने पास लिया. तो डियर स्टूडेंट्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या करेंगे, बेसिकली आपकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिड्यूस होगी. FIFO में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम शो होती है. तो 10,000 और 7,000 गिवन है, दोनों का डिफरेंस 3,000. तो 3,000 295,000 से माइनस कर देंगे, देन डिवाइड कर लेंगे 365. कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं. 24,000 प्लस 10,000, ये आ गया जी 34,000 divided by 295,000 minus 3,000, 292,000 आ गए divided by 365, 800 यानी कि 34,000 divided by 800, that is 42.50 days. ये हमारी डेज सेल्स इन इन्वेंट्री है. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर रेशियो दैट इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स minus current liabilities तो यहाँ भी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क है. आप देखिएगा जरा. करंट एसेट्स हमारे पास हैं जी $41,000 के, प्लस 10,000 जो इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ वो हमने ऐड किया. ठीक है जी. फिर माइनस कर दी करंट लाइबिलिटीज, वो हमारे पास है जी 25,000 और प्लस हमने कर दी 4,000. तो ये आप कर लेंगे 51,000 माइनस 29,000 that will be 22,000. ये हमारा वर्किंग कैपिटल होगा डियर स्टूडेंट्स. नाउ वी विल कैलकुलेट करंट रेशियो. सिंपल फार्मूला है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी हम कैलकुलेट ऊपर कर चुके हैं. 51,000 डिवाइडेड बाय 22
9,000, सिंपल है कैलकुलेशन, डिवाइड कर लें 51,000 डिवाइडेड बाय 29,000, that is 1.76, that will be current ratio. Next is debt ratio. Dear students, debt ratio का फार्मूला है total liabilities divided by total assets. ऑलरेडी हम ये अमाउंट्स कैलकुलेट कर चुके हैं, that is 25,000 plus 30,000 plus 4,000 divided by 85,000 प्लस 10,000 जो इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ, सबको आप ऐड कर लें, 25,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 95,000 multiply by 100, 62.11%. In this case you can see कि आपका जो बेसिकली क्रेडिटर्स का कंट्रीब्यूशन इन योर एसेट्स है, दैट इज 62.11%. तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? कमेंट ऑन द डिफरेंस इन द इंडिकेटेड लिक्विडिटी एंड डेट between the ratios computed under FIFO and the ratios computed under LIFO and FIFO. Dear students, these are the comments in case of FIFO, in case of LIFO. Days sales in inventory, the adjusted days sales in inventory using the FIFO data indicates that there is substantially more days sales in inventory than that indicated using LIFO. The adjusted ratio is a better indicator because the inventory figure is closer to current cost than under LIFO. Now we will discuss about the working capital. Working capital, the adjusted working capital is substantially higher than the working capital under LIFO. The adjusted working capital is a better indicator because of the more realistic inventory amount. Then we will discuss the current ratio. The adjusted current ratio is higher than the current ratio computed using the LIFO figures. तो ये हमारा बेसिकली एक एनालिसिस था, कमेंट्स थे रिजल्ट्स के ऊपर. नाउ अनदर बेसिकली डिस्कशन इज the adjusted current ratio is a better indicator because of the more realistic inventory. What about the debt ratio? The adjusted debt ratio indicates a slightly better debt ratio than does the unadjusted ratio. The adjusted ratio is a better indication of the debt position because of the more realistic inventory and liabilities of the company. So dear students, now we will solve another practical problem. The following data are presented for zero company. ये डेटा गिवन है और ये क्वेश्चन है जो कि मल्टीवेरिएट आल्टमैन ने जो पेश किया था उसके थ्रू जी स्कोर हमने फाइंड आउट करना है. जी स्कोर आपको मैंने बताया था कि जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके साथ जो वो कांस्टेंट है वो गिवन है और हमने x1, x2, x3, x4, 5 निकाल के हमने जी स्कोर फाइंड आउट करना है. कंप्यूट दी जी स्कोर फॉर जीरो कंपनी. मेरे साथ रहिए. नाउ वी विल कैलकुलेट दी जी स्कोर. Z is equal to 0.012 x1 and plus 0.014 x2 plus 0.033 x3 plus 0.006 x4 plus
0.010x5। ये तो फार्मूला हो गया। अब हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम x1 को कैलकुलेट करेंगे। 0.012 इंटू x1 के बारे में मैंने आपको स्लाइड में बताया था, वो किसको शो करता है, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 60,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 400,000। $60,000 divided by $400,000 प्लस अब हम कैलकुलेट करेंगे x2 को। x2 क्या है आप देख सकते हैं 0.014 इंटू, वापस जाएं, वो क्या कह रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स है, वो आएगी बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय, यानी कि रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो रिटेन अर्निंग्स आपकी गिवन होंगी 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट 400,000। 20,000 divided by 400,000. All types of data is given related to this question. आप देख रहे हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करूं, मेरे साथ साथ सॉल्व करें, बहुत आहिस्ता कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। Now we will put the value of third variable, that is x3.033 into थर्ड वेरिएबल कौन सा है देखें जी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो भी क्वेश्चन में दी हुई होंगी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर 40,000 डिवाइडेड बाय 400,000, यानी कि ये भी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है। फोर्थ वेरिएबल कौन सा है हमारा जी, 0.006 इंटू, क्वेश्चन में जाते हैं जी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट। ये भी हमारे पास गिवन है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 80,000, बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट इज 200,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 200,000 प्लस नेक्स्ट हमारे पास जी वेरिएबल नंबर 5 है 0.010 इंटू, क्वेश्चन पे जाएंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सेल्स इज गिवन 300,000 और एसेट्स ऑलरेडी गिवन है 300,000 डिवाइडेड बाय 400,000। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले आप ब्रैकेट वाली अमाउंट्स को सॉल्व कर लें। हमने क्या किया है कि 0.012 कांस्टेंट x1 x2 वेरिएबल की वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हम उसको कैलकुलेट करने लगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहला वेरिएबल 60,000 डिवाइडेड बाय 400,000, दैट इज 0.15। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, दैट विल बी 15। मल्टीप्लाई बाय 100 जरूर करना है। तो पहला रिजल्ट आएगा 0.012 इंटू 15, राइट। दूसरा रिजल्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 20,000 डिवाइडेड बाय 400,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी, नेक्स्ट है जी 0.014 इंटू 5, नेक्स्ट वन इज 0.033, कैलकुलेशन कर ली 40,000 डिवाइडेड बाय 400,000 multiply by 100, that will be 10. Next is 0.006 into 80,000 divided by 200,000, that will be 40. Next is 0.010 into 300,000 divided by 400,000, that will be 75. तो डियर स्टूडेंट्स की हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हम क्या करेंगे
अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहला मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.012 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट विल बी 0.18, next is 0.014 multiply by 5, 0.07, next is 0.033 multiply by 10, 0.33, next is 0.006 multiply by 40, .24, next is 0.010 multiply by 75, .75। तो डी स्टूडेंट्स इन सब को आप ऐड अप कर लें, प्लस 0.24 प्लस 0.33 प्लस 0.07 प्लस 0.18, that will be Z is equal to 1.57। ये हमारा जी स्कोर है जो कि हमारे बेंचमार्क से कम है। अब हम देखते हैं इसकी डिस्कशन के ऊपर। उम्मीद है कि जी स्कोर कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैंने एक एक स्टेप आपको बताया कि क्या क्या करना है। वेरी सिंपल स्टेप। नाउ वी विल बेसिकली डिस्कस द रिजल्ट्स कंसीडरिंग द Altman मॉडल, कमेंट ऑन द लाइवलीहुड दैट दिस फर्म विल एक्सपीरियंस फाइनेंशियल फेलियर। क्या फाइनेंशियल फेलियर है? द जी स्कोर इज बेसिकली in this firm 1.57 for a study that covered the 1972 to 1973. Z-score of 0.675 was established as a practical cutoff point, यानी कि हमारा जो लिमिट है 2.675 होना चाहिए. It shows that financial failure because our Z-score is 1.57. This is not good for the business. Firm that score below 2.675 are assumed to have similar characteristics of past failures. So this shows the company financial failures. Now we can solve another problem in front of you. Question ये आपके सामने है. Another we need to calculate the Z-score. अभी आप समझ गए होंगे कैसे करना है, तो आप मेरे साथ रहें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमने एक और रॉकेट कंपनी के Z-score फाइंड आउट करना है. तो अभी डियर स्टूडेंट्स मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा क्योंकि यू नो अबाउट द फार्मूला. हमारे पास टाइम भी कम है, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए जल्दी से ये क्वेश्चन भी हम करना चाहते हैं. तो जी स्कोर का फार्मूला याद रखिएगा, आपको पता है क्या फार्मूला है. उसकी वैल्यू x1 देन x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5. तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेशन करेंगे. z इज इक्वल टू 0.012 इंटू सारी अमाउंट्स गिवन है. पहला आप क्या है, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, वो गिवन है क्वेश्चन में. दैट इज 100,000 डिवाइडेड बाय 300,000 टोटल एसेट्स प्लस 0.014 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 300,000 एसेट्स गिवन है प्लस थर्ड वेरिएबल 0.033 into 60,000 divided by 300,000 total assets, bracket close, plus fourth variable 0.006 into 100,000 value given, dear students, divided by 220,000 plus 0.010 into 400,000 divided by 300,000. तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन. सारा डेटा हमने क्वेश्चन से टेक किया है, लिया है. सॉरी, ये काट दीजिएगा. सारा डेटा क्वेश्चन से लिया गया है. अब हम सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे.
आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले 0.012 इंटू 100,000 डिवाइडेड बाय 300,000 multiply by 100, that will be 33.33. Next is 0.014 into 40,000 divided by 300,000 multiply by 100, that is 13.33. Next is 0.033 into 60,000 divided by 300,000 multiply by 100, that will be 20. Next is 0.006 into 100,000 divided by 220,000 multiply by 100, 45.45. Last one is 0.010 into 400,000 divided by 300,000 multiply by 100, 133.33. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन विल बी 0.012 multiply by 33.33, that will be 0.39, राउंड कर देंगे तो 0.40. नेक्स्ट इज 0.014 multiply 13.33, तो that will be 0.19. Next calculation is 0.033 multiply by 20, 0.66. Next is 0.006 multiply by 45.45, 0.28, 27 भी आप लिख सकते हैं, 0.010 multiply by 133.33, that is 1.33. तो डियर स्टूडेंट्स, सबको ऐड अप कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। मैं ऐड अप करने लगा हूँ। 0.40 प्लस 0.19 प्लस 0.66 प्लस 0.27 प्लस 1.33, that is 2.85. ये हमारा जी स्कोर है। तो ये हमारा पहले ही कंपनी की निस्बत बेहतर है। 2.675 हमारी रिक्वायरमेंट है और हमारा जी स्कोर 2.85 है। दिस इज गुड फॉर द बिजनेस। देयर इज नो फाइनेंशियल फेलियर इन दिस केस। नाउ व्हाट इज रिक्वायरमेंट? बेसिकली रिक्वायरमेंट इज कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। The Z-score of this company is 2.85 for a study that covered the period 1972-1973. A Z-score of 2.675 was established as a practical cutoff point. Firms that score below 2.675 are assumed to have similar characteristics of failure, but here there is no basically financial failure because company has Z-score is 2.85. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कैलकुलेशंस रिगार्डिंग जी स्कोर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन थी। शुरू में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, लेकिन जब अब टाइम गुजरता गया तो आपने देखा बहुत मज़े की कैलकुलेशन थी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आ चुका होगा। नाउ एट द एंड वी विल डिस्कस द टुडे लेक्चर समरी। Today, dear students, we have discussed the various topics like perceptions of financial ratios in annual reports of the firms, conservatism and quality of earnings of the business, and we have discussed forecasting financial failures, and we have discussed two models, univariate model and multivariate model, and management use of analysis, and we have discussed the use of LIFO reserves and management of earnings and valuation.
व्हाट एनालिस्ट यूज बेसिकली ये हमने डिस्कस किया. देन वी हैव सॉल्व वेरियस प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज कि उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपने एंजॉय किया होगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन थी, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी. उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी. तो रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, कंसंट्रेट ऑन योर बेसिकली वर्क, देन यू आर एबल टू एनालाइज ऑल टाइप्स ऑफ रेशियोज. एवरी डे आपको पता है कि आप रोजाना नई रेशियो सीख रहे हैं. तो कल तक के लिए इजाजत. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.